اور بار بار یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے نام سے کہاں دعوت نامہ آیا ہے، اشرفیہ والوں نے کیا آپ کے یہاں دعوت دینے کا یہی طریقہ ہے کہ جو ہے تو دعوت کے لیے ہمارے پاس دعوت نامہ آئے؟ ارے حضرت کاہے کے لیے اتنی بچکانہ باتیں کرتے؟ دعوت عام کے لیے کوئی دعوت نامہ نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دعوت عام کے لیے کوئی دعوت نامہ نہیں ہوتا ہے، دعوت خاص کے لیے دعوت نامہ ہوتا ہے۔ دعوت عام بہت ساری ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں، جہاں پر ہر شخص کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ آئے جائے، کسی کو روکا نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پہ بزرگوں کے جو آراس ہوتے ہیں، عرس کا پوسٹر نکلتا ہے، وہی پوسٹر دعوت نامہ ہے، سب کے لیے دعوت عام ہے۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں تاریخ کو حضرت کا عرس ہوگا، جو چاہے آ کر کے لنگر بنے گا، جو چاہے آ کر کے کھا کر کے جائے۔ اب وہاں پر پھر سارے آپ کہتے ہیں کیا کہ جو ہے تو نہیں، ہم کو دعوت نامہ نہیں ملا ہے، ہم جا کر کے نہیں کھائیں گے، اسپیشل ہمارا دعوت نامہ کہاں ہے؟ تو مولانا صاحب آن دا ریکارڈ مفتی اشرفیہ نے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے اشرفیہ میں ببانگ دہل سب کے سامنے اوپن ہے اعلان کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ حسام الحرمین میں نظر ثانی کے حوالے سے جن کو شکوک و شبہات ہو گئے ہیں، جن کو میں ناصر رامپوری بھی ہیں، ذیشان مصباحی بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، اور جس کو بھی شبہ ہو وہ سب ہیں، اور سب کے لیے دعوت عام ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کوئی اتنے بڑے وہ اپنے آپ کو مت سمجھ، اپنے آپ کو سمجھتے رہیے محقق کہ آپ کو کوئی اسپیشل مولانا ذیشان مصباحی، مولانا ناصر رامپوری مصباحی تشریف لائیے، وہ کوئی آپ کو اہمیت دے گا تب نہ یہ اسپیشل دعوت نامہ دے گا۔ دعوت عام ہے، اس میں آپ بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں، جتنے بھی جو ہے تو مخاطب ہے، جس کو بھی شکوک و شبہات ہو جائیے، اچھا جائیے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے تو ہم آپ کے شکوک و شبہات کا سب جواب مل جائے گا۔ اور پھر باتیں کیوں بدلتے ہیں؟ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نام سے اسپیشل دعوت نامہ نہیں آیا، دوسری طرف ناصر رامپوری صاحب کہہ رہے ہیں مفتی نظام صاحب کی کلپ چلا کر کے یہ بتائیے ایسے ماحول میں کیسے بات ہو سکتی ہے۔ ارے بھیا جب تو آپ کو خاص دعوت نامہ جب تک نہیں ملے گا تب تک جو ہے تو آپ جائیں گے نہیں، تو پھر وہ ایسے ماحول کے آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ مکاری 420 ہے، یہ بالکل میں بتا رہا ہوں، جھوٹ مکاری 420 ہے۔ مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا تحقیق کریں گے جو مفتی نظام صاحب کی تحقیق کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ مولانا ناصر صاحب نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ مفتی اشرفیہ نے اگر اپنی کوئی اسپیشل تحقیق محافظ خانوں میں کیمیکل لگا کر کے چھپا اور بچا رکھی ہے تو بتائیے، تو میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اب آپ یہ بتائیے، اور اسی پوسٹ میں آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ مفتی نظام صاحب میرے استاذ ہیں۔ آپ حضرات جتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، چاہے وہ ان کے بھی ماننے والے، ان کو بھی معتقدین ہوں، بہرحال جس کو جس سے عقیدت ہوتی ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ہم عقیدت میں اندھے ہو جاتے ہیں، غلط بات کو بھی ہم غلط کہنے کی ہمت نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے جو استاذ ہیں، جو جتنے لوگ اس بات کو سن رہے ہیں، ہر شخص اپنے دل میں سوچے کہ جو آپ کے استاذ ہیں اور جن کو آپ مان بھی رہے ہیں کہ وہ میرے استاذ ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے کہ استاذ نہیں مانتے ہیں، تو جب آپ مان رہے ہیں کہ وہ میرے استاذ ہیں، پھر ان استاذ کی کسی تحقیق کے بارے میں اگر آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ میرے استاذ نے اپنی تحقیق کو جو ہے اسپیشل تحقیق کو محافظ خانوں میں کیمیکل لگا کر کے دبا اور بچا رکھا ہے، تو کیا یہ جملہ آپ کے استاذ کی تحقیق پر طنز کرنا نہیں ہے؟ کیمیکل لگا کر کے کن چیزوں کو چھپایا جاتا ہے؟ ممیز اور جو ہوتے ہیں جن کو ان کے لیے کیمیکل جو ہے تو لگایا جاتا ہے، اپنی تحقیق اور اپنی کتابوں کو کون کیمیکل لگاتا ہے؟ آپ بتائیے یہ کون سا کیمیکل ہے؟ اور پھر جو ہے تو جو تحقیق ہے، اگر آپ یہ کہیے کہ ہاں کوئی ایسی تحقیق ہے جس کو آپ جو ہے تو لوگوں کے سامنے عام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ مخصوص لوگوں کو دکھاتے ہیں، تو بات الگ ہے۔ یہ بھی تو ایک جملہ ہے، ساری بنیاد کی جڑ یہی تو ہے کہ آپ جو ہے جملہ ایسا کیوں لا رہے ہیں جس میں جو ہے تو طنز ہو، بے ادبی ہو۔ جب آپ اپنے استاذ کا ادب نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کو تو بے ادب لوگ رحمۃ اللہ علیہ لگیں گے ہی۔ آپ بتائیے، آپ جب اپنے استاذ کا ادب نہیں کر پا رہے، کون جو ہے تو سلیم الطبع آدمی ہے؟ ہاں اب وہی ہے، لگ جائیں گے ان کے لوگ، نہیں آپ اس کا یہ معنی نہیں سمجھے، آپ اس کا وہ معنی نہیں سمجھے۔ تو مولانا اظہار احمد اظہری صاحب نے یہی کیا تھا میرے ایک پوسٹ میں، مولانا ناصر رامپوری پہ میں نے کمنٹ کیا تو کہہ رہے کہ آپ اس کو سمجھے نہیں۔ تو میں نے انہیں یہی کہا، مولانا میں ناصر صاحب کی بات نہیں سمجھ پا رہا ہوں، مگر ناصر صاحب اعلیٰ حضرت کی بات سمجھ گئے۔ یہ تو کمال ہو رہا ہے۔ مولانا ناصر صاحب جو میرے معاصر ہیں، میں ان کی بات نہیں سمجھ پا رہا ہوں آپ کی بقول، مگر مولانا ناصر صاحب آپ کے نزدیک اعلیٰ حضرت کی بات سمجھ گئے، جن کا زمانہ 100-150 سال پرانا تھا۔ تو میں نے کہا اسی کو اندھ بھکتی کہتے ہیں کہ آپ دوسرے کے بارے میں تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ان کی بات نہیں سمجھے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت کی بات کو جو ہے تو سمجھ گئے ہیں، اور وہ اعلیٰ حضرت کی بات صحیح نہیں تھی، لہٰذا وہ تحقیق کرنے کی جو ہے تو اس میں ضرورت ہے۔ تو یہ تحقیق کیا کریں گے؟ بہرحال تحقیق کے نام پہ ایک چیز ہوتی ہے، دیکھیے تبسیط، میں آپ کو بتاؤں، اس کو کہتے ہیں دھوکہ دینا۔ تحقیق کا مطلب ہوتا ہے واقع اور نفس الامر میں جو چیز ہے وہ چیز جو ہے تو آپ کے سامنے آ جائے۔ تحقیق کا مطلب جو حق ہے نفس الامر میں، وہ حق جو ہے آپ کے سامنے آ جائے، یہ ہے تحقیق۔ اور تبسیط کیا ہے؟ تبسیط کا مطلب ہوتا ہے کہ واقع اور نفس الامر میں حق تلاشنا مقصود نہیں ہے، اس کو اتنا پھیلا دو، اتنا بکھیر دو، جو تبسیط
اتنا बिखेर दो, इतना फैला दो और लोगों को इतना उलझा दो, उसमें इतना बझा दो कि मुतवस्सित दर्जे के लोग सोचेंगे कि वाह वाह ये तो बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। मौलाना नासिर रामपुरी साहब वही कर रहे हैं। तो तहकीक नहीं है कोई, इसलिए तहकीक नहीं, मैं आपको बताऊं। देखिए पूरा का पूरा दफ्तर लिखिए आप, हज़ारों किताबें लिखिए, हज़ारों सफ़ात लिखिए, उसका माहसल क्या है, उसका माहसल क्या है? अगर माहसल आप देखेंगे तो सिर्फ 2 सत्रों में जो है तो 3 सत्रों में वाज़ेह है। और यही लेकर के मैंने उनसे जो है तो सवालात किए हैं कि मिसाल के तौर पे आप खुद कह रहे हैं कि एहानत रसालत माब और जो है इनकार ख़ातिमियत ज़मानी और इनकार मुहीत इल्म नबवी, इहात इल्म नबवी, तो ये जो अहम 2-3 जो है तो मसले हैं, इनके बारे में खुद मौलाना नासिर रामपुरी साहब ये कह रहे हैं कि ये कुफ्र क़तई है, वाजिबुत तकफ़ीर है। तो जब आप मान रहे हैं कि ये जुमले जो है तो कुफ्र क़तई हैं और वाजिबुत तकफ़ीर हैं, इतना मुकदमा जो है तो वाज़े हो गया। और फिर उसके बाद में जो है आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इन इबारतों को इस्तेमाल किया है, जिन लोगों ने इन इबारतों को इस्तेमाल किया है, उस इबारत से आप जो है तो ये साबित करके दिखा दीजिए, उन इबारतों से ये साबित करके दिखा दीजिए। तो मैंने मौलाना इजहार सईदी साहब से यही कहा कि इनकार ख़ातिमियत ज़मानी, यानी ज़माने के एतबार से आखिरी नबी होने का अगर कोई इनकार करता है तो बकौल मौलाना नासिर रामपुरी ऐसा शख्स जो है वाजिबुत तकफ़ीर है, ऐसा शख्स वाजिबुत तकफ़ीर है जो इनकार ख़ातिमियत ज़मानी करे। अब आप ये बताइए कि मौलाना कासिम नानोतवी ने जब वाज़े तौर पे कह दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुन नबिय्यीन यानी ज़माने के एतबार से आखिरी नबी मानना, तो ये अवाम का ख़याल है। अब आप ये बताइए इसमें इनकार ख़ातिमियत ज़मानी है या नहीं? इनकार ख़ातिमियत ज़मानी का मतलब क्या हुआ? ज़माने के एतबार से जो सबसे आखिरी नबी हो, यानी अब आपके बाद कोई नया नबी जो है तो नहीं आएगा। और रहे ईसा अलैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना, तो वो तो चूँकि पहले से आ चुके, उनकी जो बक़िया उम्र है उसको आकर के वो दुनिया में गुजारेंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद अब आपके ज़माने के बाद अब कोई नया नबी जो है तो आने वाला नहीं है। अब अगर कोई ये कहता है कि ये अवाम का ख़याल है कि हुज़ूर ख़ातिमुन नबीय्यीन का माना ये होता है कि ज़माने के एतबार से जो आखिर हो, ये अवाम का ख़याल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ख़याल गलत है। तो ये इनकार ख़ातिमियत ज़मानी हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए। और जब ये इनकार ख़ातिमियत ज़मानी हो गया मौलाना साहब, और अब बात इतनी रह गई, अब इसको आप वाजिबुत तकफ़ीर भी कह रहे हैं, तो वाजिबुत तकफ़ीर का मतलब ये होता है कि अब तकफ़ीर उसकी वाजिब हो गई है। अगर आप उसकी तकफ़ीर नहीं करेंगे या जो भी नहीं करेगा तो वो खुद अपने ईमान का जो है तो मुहासबा करे। तो अब ये कोई मुकदमा है जिसको तूल दिया जाए? अब उसके लिए आप जो है तो उनके वो जो लोग उनके तहरीरें पढ़ रहे हैं और वो लंबी लंबी तहरीरें लिख रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ तहकीक नहीं, एक तबसीत है। तबसीत का मतलब होता है नफ्स मौजू को इतना फैला दो, उसमें इतनी शिकें निकाल दो, इतने जो है तो बेज़रूरत बातें, अगर ज़रूरत की हो तब तो बहुत अच्छी बात है, बेज़रूरत इतनी फैला दो ताकि मुतवस्सित दर्जे के जो नीचे दर्जे के लोग हैं वो हैरत करें, अरे वाह हज़रत क्या लिख दिया आपने, अरे वाह हज़रत आप क्या धूल की कौड़ी ले, अरे वाह हज़रत आपने क्या बता दिया। तो ये बहुत ही ख़तरनाक प्रोपेगेंडा हुआ करता है और ये बहुत पहले से चला रहा है। मुतज़िला पहले ऐसा ही जो है तो हथकंडा अपनाया करते थे। क्या करते थे? वो ज़हनी एतबार से, अक़ली एतबार से लोगों के दिमाग में कोई चीज़ें डाल दिया करते थे और सोचते थे कि हमने बहुत जो है तो बड़ा तीर जो है तो मार दिया। बहरहाल अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। और बार बार ये एतराज़ करते हैं कि हमारे नाम से कहाँ दावतनामा आया है, अशरफिया वालों ने क्या आपके यहाँ दावत देने का यही तरीका है कि जो है तो दावत के लिए हमारे पास दावतनामा आए? अरे हज़रत काहे के लिए इतनी बचकाना बातें करते? दावत आम के लिए कोई दावतनामा नहीं होता है, समझ रहे हैं आप? दावत आम के लिए कोई दावतनामा नहीं होता है, दावत ख़ास के लिए दावतनामा होता है। दावत आम बहुत सारी होती हैं, हर जगह होती हैं, जहाँ पर हर शख्स को इजाज़त होती है कि वो आए जाए, किसी को रोका नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पे बुज़ुर्गों के जो आरास होते हैं, उर्स का पोस्टर निकलता है, वही पोस्टर दावतनामा है सबके लिए, दावत आम है। उसमें लिखा होता है कि फ़ला फ़ला तारीख को हज़रत का उर्स होगा, जो चाहे आकर के लंगर बनेगा, जो चाहे आकर के खा करके जाए। अब वहाँ पर सारे आप कहते हैं क्या कि जो है तो नहीं, हमको दावतनामा नहीं मिला है, हम जा कर के नहीं खाएँगे, स्पेशल हमारा दावतनामा कहाँ है, हैं? तो मौलाना साहब ऑन द रिकॉर्ड मुफ्ती अशरफिया ने एक ज़िम्मेदार की हैसियत से अशरफिया में बबांगे दुहल सबके सामने ओपन है ऐलान कर दिया और ये कह दिया कि हुसामुल हरमैन में नज़र सानी के हवाले से जिनको शुकूक व शुबहात हो गए हैं, जिनको में नासिर रामपुरी भी हैं, ज़ीशान मिसबाही भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, और जिसको भी शुबहा हो वो सब हैं और सबके लिए दावत आम है। समझ रहे हैं आप कोई इतने बड़े वो अपने आप को मत समझ, अपने आप को समझते रहिए महक़्क़िक़ कि आपको कोई स्पेशल मौलाना ज़ीशान मिसबाही, मौलाना नासिर रामपुरी मिसबाही तशरीफ़ लाइए तो कोई आपको अहमियत देगा तब ना ये स्पेशल दावतनामा देगा, हैं? दावत आम है, उसमें आप भी शामिल हैं, सब शामिल हैं, जितने भी जो है तो मुखातब है, जिसको भी शुकूक व शुबहात हो जाइए, हैं?
अच्छा जाइए, और फिर उसके बाद में जो है तो हम आपके शुक्र को शुभात का सब जवाब मिल जाएगा। और फिर बातें क्यों बदलते हैं? एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमारे नाम से स्पेशल दावतनामा नहीं आया, दूसरी तरफ नासिर रामपुरी साहब कह रहे हैं मुफ्ती निज़ाम साहब की क्लिप चला करके कि बताइए ऐसे माहौल में कैसे बात हो सकती है। अरे भैया, जब तो आपको खास दावतनामा जब तक नहीं मिलेगा तब तक जो है तो आप जाएंगे नहीं, तो फिर वो ऐसे माहौल के आपको क्या लेना देना है? सही बात यह है कि ये झूठ मक्कारी 420 है, ये बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, झूठ मक्कारी 420 है। और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इतना अहम मसला है, आपको शुभ को शुभात हो गए हैं तो खलजान पैदा हो सकता है। अल मुंतकद में एक जुजिया नकल किया गया है कि अगर किसी को कोई जहन में शैतान वसवसा डाल दे, जहन में अगर शैतान की तरफ से वसवसा आ जाए कि वो किसी ज़रूरियात दीन को मानता हो और उसके ख़िलाफ़ उसके जहन में बात आ जाए, अल मुंतकद में बाज़ाब्ता जो है अल्लामा बदायूनी साहब ने लिखा है, ये मतन है, शराबी नहीं है कि आप लोग कहें कि वो तो हुज़ूर आला हज़रत की बात हो गई, अब हम क्यों, अल्लामा बदायूनी की बात है। उन्होंने लिखा है कि अगर, और उन्होंने भी अपने ही अकाबरीन से नकल किया है, तो वो मसला ही है इल्म कलाम का कि अगर किसी मुसलमान के जहन में कोई ऐसी बात आ जाए जो है तो ज़रूरियात दीन के ख़िलाफ़ हो, भाई आ सकती है, किसी के भी जहन में आ सकती है, वसवसात से कौन जो है तो महफूज है, तो उसके बारे में उलमा हुक्म बयान फरमाते हैं कि फ़िल वक्त वो उसके हक़ जानने का एतिकाद रखे। आप कहेंगे मैं आपको मुतक़दुल मुंतक़द का हवाला और स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, उसके बारे में हुक्म यह है कि वो फ़िल वक्त उसके हक़ होने का एतिकाद रखे, और उसके ऊपर लाजिम और वाजिब है कि जब कोई आलिम दीन मिले, सुनिए जो फ़िक्र का मसला है, जो दीन का मसला है, आपके घर का नहीं, कि जब भी कोई मुनासिब आलिम दीन मिले तो उसके ऊपर वाजिब और लाजिम है कि फ़ौरन उससे उसके बारे में सवाल करे और अपने शुकूक व शुबहे को ख़त्म करे। और इसका ये मतलब नहीं कि जब तक कोई आलिम दीन नहीं मिलेगा तो उसको जो है तो अपने अकीदे को जो है तो छोड़ दे, नहीं, उसको हक़ ही जानता रहे, और जब तक आलिम ना मिल जाए, कोई आलिम दीन ना मिल जाए, उस वक्त तक लाजिम है, वाजिब है उसके ऊपर कि वो तलाश करे और उस शक और शुबहे को दूर करे। और यहाँ तो आपको बुलाया जा रहा है। अब आप बताइए कि आप दीन पर अमल कर रहे हैं कि अपने घर के उसूल बनाए हुए हैं उस पर बैठे हुए कि हमको स्पेशल दावतनामा मिलेगा, हमको जो है तो गाड़ी भेजी जाएगी, हमको जो है तो टिकट भेजा जाएगा? हैं, मादर इल्मी है आपका, असातिज़ा हैं सब आपके, ये कौन सी जो है तो बात हो गई जो है तो कि हमें कौन सा, आप उनके वकील, क्यों कोई वकील बनेगा जब दावत आम है? तो भैया कहाँ से उसूल करते हैं? मैं मौलाना ज़ीशान मिसबाही साहब पढ़े लिखे आदमी है, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ, पढ़े लिखे नहीं, ऐसा नहीं, मैं इनकार नहीं करूँगा हक़ाइक़ का, मगर बिल्कुल जो है तो बेवकूफ़ियत वाले काम होते हैं, बेवकूफ़ियत वाली बातें होती हैं। वही हाल मौलाना नासिर रामपुरी साहब का है। बहरहाल हमें बुज़ुर्गों की बारगाहों का मुअद्दब और अपने असातिज़ा की बारगाह का मुअद्दब जब तक हम रहेंगे, उनका अदब करेंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है अल्लाह ताला गैब से हमारी हिफाजत फरमाएगा। और इतना तो तय है कि इन लोगों के दिल दिमाग में जो चीज़ रच और बच गई है, ये हक़ सामने देख करके भी जो है तो उसको पहचानेंगे नहीं। और मैं दूसरे लोगों से गुजारिश करूँगा जो लोग अभी इस मामले में नए हों कि सिर्फ़ और सिर्फ मौलाना ज़ीशान मिसबाही, मौलाना, अच्छा मुझे इस 2-3 दिन में पता चला कि मौलाना ज़ीशान मिसबाही, मौलाना नासिर मिसबाही दोनों मिल के तहक़ीक़ कर रहे हैं। पहले मैं समझ रहा था सिर्फ नासिर रामपुरी ही कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है कि पता चल गया ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ धोखा देते हैं, और ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और आप लोग इनकी तहरीरों से बचें और इनसे अपने आप को दूर रखें। बहरहाल जो है तो ये सिर्फ आपके सामने ज़ाहिर बहुत अच्छा करेंगे कि हम तो उम्मत में इत्तिफाक चाहते हैं, हम तो उम्मत में इत्तिहाद चाहते हैं, तफ़रक़ाबाज़ी ख़त्म करना चाहते हैं, तकफ़ीरी ये जो गन है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो इस तरीके की बातें आपके सामने पहले रखेंगे, और उसके बाद में जो है आपको धीरे से, जैसे होता है ना बहकाने वालों का तरीका, वो इस तरीके से किया करते हैं। अपने असातिज़ा से जुड़े रहिए, उलमाए अहले सुन्नत से जुड़े रहिए, और जो हमारे अकाबिरीन हैं उनका अदब व एहतराम कीजिए। इसी में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है और कामरानी है।